کہتے ہیں ایک بار کا ذکر ہے جب سورج کو بھی پسینہ آتا تھا، ریت اتنی گرم تھی کہ انڈا نہیں پورا ناشتہ بن سکتا تھا، اور ہوا اتنی سست کہ اگر کسی نے سیٹی بجائی تو جواب اگلے دن آتا۔ وہ دن تھے جب قافلے رستہ بھول جاتے اور مسافر اپنے ایک سے باتیں کرتے۔ اسی تپتی دنیا کے ایک کونے میں ایک اکیلا مسافر چلتا جا رہا تھا، کندھے پر بوری، ہاتھ میں لٹکا پانی کا مشکیزہ، اور ساتھ ایک گدھا جو اتنا ضدی تھا کہ لگتا تھا نانی کا لاڈلا ہو۔ مسافر کا نام عبدالغفور تھا، مگر گاؤں میں سب اسے غفور مسافر کہتے تھے کیونکہ بندہ کہیں ٹھہرتا ہی نہیں تھا، اور گدھے کا نام بہادر تھا، مگر حقیقت میں وہ بہادری سے زیادہ ڈھیٹ تھا۔ جب چلنا ہوتا بیٹھ جاتا اور جب آرام کا وقت آتا بھاگ نکلتا۔ غفور بولا، او بہادر، دیکھ آج کا سفر آسان نہیں، سامنے ریت کے ٹیلے ہیں، پانی آدھا مشکیزے میں ہے اور دھوپ پوری شدت سے ہم پر کرم فرما رہی ہے۔ بہادر نے گردن موڑ کر دیکھا اور ناک سکیڑ کر جواب دیا، اس بار تو لگتا ہے تم مجھے ٹوسٹ بنا کر کھا جاؤ گے، میرا دل کہتا ہے واپس چلتے ہیں۔ غفور ہنسا، واپس؟ ارے پگلے، جو سفر آدھے میں چھوڑ دے اس کی منزل ہمیشہ روتی رہتی ہے۔ بہادر نے ہلکی سی دم ہلائی، تو منزل جا کے رونے دے، میں تو ٹھنڈی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ دونوں چلتے گئے، ریت کے ذرے جوتوں میں گھستے گئے، سورج سر پر ہتھوڑے مارتا رہا۔ کہیں کہیں ریت ایسے جلتی کہ اگر گدھا اس پر کھڑا ہو جاتا تو ناچنے لگتا۔ غفور کہتا، واہ بہادر، لگتا ہے تمہیں ناچنا بھی آتا ہے۔ بہادر جل کر بولا، ہاں آتا ہے، مگر دل جلنے کے بعد۔ راستے میں ایک پیاسا کوا ملا۔ کوا نے کہا، بھائی پانی ہے؟ غفور نے مشکیزہ دکھایا، بس 2 گھونٹ بچے ہیں، ایک میرے لیے ایک بہادر کے لیے۔ کوا بولا، پھر ٹھیک ہے، میں دعا دے دیتا ہوں، تمہارے سفر میں کبھی سایہ کم نہ ہو۔ غفور مسکرایا، دعا کا سایہ سب سے ٹھنڈا ہوتا ہے، شکریہ دوست۔ سورج ڈھلنے لگا، افق پر لال دھوپ ریت پر پھیل گئی جیسے زمین نے آگ اوڑھ لی ہو۔ غفور نے کہا، بس تھوڑا سا چل لو، اگلا پڑاؤ آ رہا ہے۔ بہادر نے قدم روکے، یہی تم کل بھی کہہ رہے تھے۔ ارے کل والا پڑاؤ نہیں، آج والا پڑاؤ ہے، فرق سمجھو، فلسفہ ہے۔ فلسفہ چھوڑو، گھاس کہاں ہے؟ غفور نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہ بھری، یا اللہ، یہ گدھا نہیں فلسفی ہے۔ رات ڈھلنے لگی، چاند نکلا تو ریت چاندی بن گئی، ہوا چلنے لگی اور بہادر نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ غفور نے اپنے کندھے پر چادر ڈالی، آگ جلائی اور بولا، بہادر کبھی سوچا ہے ہم دونوں کتنا عجیب جوڑا ہے؟ ایک انسان جو سفر سے محبت کرتا ہے اور ایک گدھا جو سفر سے نفرت۔ بہادر نے جمائی لی، ہاں، اور دونوں بھوکے ہیں۔ غفور ہنسا، بس یہی تو زندگی ہے، بھوک، سفر اور کہانیاں۔ بہادر نے آہستہ کہا، اور کبھی کبھی بے وقوف مالک بھی۔ اسی رات ہوا نے ان دونوں کی باتیں اٹھا کر ریت کے ذروں کو سنا دی۔ صبح جب سورج نکلا تو ریت کے ٹیلوں پر ان کے قدموں کے نشان ایک نئی کہانی لکھ چکے تھے، سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ کہتے ہیں اگلی صبح سورج ایسے نکلا جیسے کسی نے آگ کے برتن کو آسمان پر رکھ دیا ہو۔ ریت کی چمک آنکھوں کو چبھتی تھی، اور غفور مسافر اپنے ددے بہادر کے ساتھ سفر پر دوبارہ روانہ ہوا۔ دونوں کے درمیان اب ایک عجیب دوستی سی بن گئی تھی، وہ ایک دوسرے کو تانے بھی دیتے، ہنستے بھی، اور پھر چپ چاپ ریت میں قدم بڑھاتے جاتے۔ غفور نے کہا، بہادر، سنا ہے اس راستے میں ایک قافلہ گزرتا ہے جس کے پاس سونا، چاندی اور کھجوریں ہوتی ہیں، اگر وہ مل جائے تو ذرا سایہ بھی مل جائے گا اور کھجوریں بھی۔ بہادر نے کان ہلائے، مجھے کھجوروں سے زیادہ پانی چاہیے، اور سونا تم جیب میں رکھ لینا، میں ریت میں گر جاؤں گا تو تمہیں خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ دور سے شور سنائی دیا، اونٹوں کی گھنٹیاں، لوگوں کی آوازیں اور دھول کی دھمک۔ غفور نے کہا، ارے لگتا ہے وہی قافلہ ہے، اور دونوں تیزی سے چلنے لگے۔ قریب پہنچے تو منظر ہی نرالا تھا، درجنوں اونٹوں کا قافلہ، درمیان میں ایک موٹا تاجر، سر پر عمامہ، ہاتھ میں پنکھا اور پیچھے نوکر پانی کے مشکیزے اٹھائے۔ غفور نے آواز دی، السلام علیکم اے قافلے والو۔ تاجر نے پلٹ کر دیکھا، کون ہے، مسافر یا لٹیرا؟ غفور ہنسا، مسافر ہوں مگر بھوکا نہیں، اگر کچھ سایہ مل جائے تو غنیمت ہے۔ تاجر نے کہا، آؤ، سایہ بھی ہے، کہانی بھی سناؤ، بدلے میں کھجوریں ملیں گی۔ غفور بیٹھ گیا، بہادر بھی آرام سے ریت پر پھیل گیا۔ غفور نے قافلے کے لوگوں کو اپنی کہانیاں سنائیں، کبھی دریا کے پار کی،
कभी बर्फ के पहाड़ों की, कभी गांव की छतों पर चमकते चांद की। काफले वाले हंसते रहे, लुत्फ लेते रहे, मगर बहादुर का ध्यान कहीं और था। उसने देखा कि काफले के पीछे एक साया आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। एक लोमड़ी, चालाक आंखें, रेत जैसा रंग और मुंह में कुछ दबाए हुए। बहादुर ने गफूर को आहिस्ता से टोका, ओ इंसान, वो देखो, पीछे कोई है। गफूर ने पलट कर देखा, अरे ये तो लोमड़ी है। लोमड़ी करीब आई और बोली, अरे ओ मुसाफिरो, तुम तो कहानियों में मसरूफ हो और तुम्हारा खाना मैं ले जा रही हूँ। काफले वाले चौंक गए। ताजिर बोला, अरे पकड़ो मेरी खजूरें। उछलकर आगे बढ़ा और लोमड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। लोमड़ी बोली, हट जा वरना दांत चमकाऊंगी। बहादुर ने गर्दन सीधी की, मैं गधा जरूर हूँ मगर किसी का नौकर नहीं। खजूर छोड़ दे वरना तेरी दम का नक्शा बदल दूंगा। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अगर मैं तुझे एक राज बता दूं तो खजूरें मेरी। गफूर बोला, राज की कीमत तो सुनते हैं सोना होती है, खजूर नहीं। लोमड़ी मुस्कुराई, राज ये है कि इस सहरा में एक छोटा सा दरख्त है जिसके नीचे जमीन ठंडी है और वहां एक पुराना कुनवा है। जिसने उसका पानी पिया उसका दिल रोशन हो गया, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं। ताजिर ने फौरन कहा, हमारे साथ चलो, हम सब वो पानी पीएंगे। लोमड़ी हंसी, अरे इंसानों, मैं तो रेत पर चलने वाली हूँ, तुम्हारा काफिला तो बोझ में डूबा है। खैर, जो जाना चाहे मेरे पीछे आए। ये कहकर वो तेजी से दौड़ गई। काफले वाले हिचकिचाए, कुछ बोले ये फरेब है, कुछ ने कहा शायद सच हो। मगर गफूर ने बहादुर से कहा, क्या ख्याल है? बहादुर ने आंख मारी, सफर में सच और झूठ दोनों देखने चाहिए वरना कहानी अधूरी रह जाती है। यूं दोनों लोमड़ी के पीछे चल निकले। रेत नर्म, हवा गर्म, सूरज मगरिब की तरफ झुकता जा रहा था। दूर से लगता था जैसे वो तीन साये सहरा में तैर रहे हों, एक इंसान, एक गधा और एक लोमड़ी, सब अपने अपने मतलब के पीछे। रास्ते में लोमड़ी पलटकर बोली, देखो मैं तुम्हें धोखा भी दे सकती हूँ मगर सबक भी। गफूर हंसा, हमने दोनों के लिए तैयार रहना सीख लिया है। बहादुर ने दुम हिलाई, बस सबक खाने के बाद देना, भूखा पेट अक्ल नहीं सुनता। शाम ढली तो वो एक अजीब मकाम पर पहुंचे। रेत की जगह जमीन नम थी और दूर एक दरख्त नजर आ रहा था। गफूर ने कहा, शायद यही वो जगह है। लोमड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, बस इतना याद रखना, पानी हर किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ उनके लिए जो प्यासे दिल से ढूंढते हैं। ये कहकर वो गायब हो गई। गफूर ने कुएं के पास जाकर झांका और नीचे अंधेरा। बहादुर बोला, मुझे तो लगता है ये चाल है। गफूर ने कहा, और मुझे लगता है ये इम्तिहान है। दोनों ने चांदनी में खैमा लगाया। रात फिर से पुरअसरार थी, हवा में कहानी थी। बहादुर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, काश ये कुआं हमें सुकून दे दे। गफूर ने धीरे से कहा, सुकून हमेशा अंदर होता है, बस कुआं बहाना होता है। और यूं उस रात रेत पर एक नया बाब लिखा गया। सफर अब सिर्फ प्यास का नहीं, शोर का बन गया था। कहते हैं रात लंबी थी और खामोशी इतनी गहरी कि अगर किसी ने आह भरी होती तो रेत के जर्रे तक चौंक जाते। चांद आधा आसमान पर लटका था, जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांध दिया हो। गफूर मुसाफिर ने आग जलाई, बहादुर धुंध से मक्खियां भगाता रहा और दोनों के बीच सिर्फ सवालात के साए बैठे थे। गफूर बोला, बहादुर, ये कुआं अजीब सा लगता है, इतना पुरअसरार जैसे किसी ने इसमें सदियों का सुकूत बंद कर रखा हो। बहादुर ने जमाई ली, मुझे तो बस ये लगता है कि पानी मिल जाए तो फलसफा खुद बह जाएगा। गफूर ने मिट्टी का प्याला कुएं में डाला, मगर आवाज आई, ठक ठक ठक। पानी तो है नहीं, फिर ये आवाज किसकी? वो हैरान हुआ। अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजी, हाँ हाँ हाँ, ओ मुसाफिरो, तुम क्यों प्यासे आए हो? यहाँ पानी नहीं, कहानी है। बहादुर पीछे हटा, ओ खुदाया, ये कुनवा बोलता भी है। गफूर ने दिल मजबूत किया, कौन है तू? आवाज बोली, मैं रेत के नीचे दफन कहानियों का मुहाफिज हूँ। जो मुझसे सच बोलता है उसे ठंडा पानी मिलता है, जो झूठ बोलता है उसके होंठों पर खाक जम जाती है। गफूर ने बहादुर की तरफ देखा, तैयार हो इम्तिहान के लिए? बहादुर बोला, मैं गधा जरूर हूं मगर झूठ कम बोलता हूं, सिर्फ मालिक से जब खाने का वादा लेता हूं। गफूर ने कुनवे के पास जाकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, सच की तलाश में। आवाज बोली, तो फिर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता। गफूर ने सोचा, फिर बोला, मेरी कमजोरी है कि मैं रुक नहीं पाता, हर सफर खत्म होने से पहले अगला सफर शुरू कर देता हूं। खामोशी छा गई, फिर कुएं से ठंडी हवा निकली, जैसे किसी ने नेमत बांट दी हो। पानी तेरा हक है मुसाफिर, ले, ये पहला घूंट प्यास के नहीं, सच के नाम पर। गफूर ने पानी पिया,
वो आम पानी नहीं था, ठंडा, मीठा और दिल को जगाने वाला, जैसे अंदर कोई चिराग जल गया हो। अब बारी थी बहादुर की। कुएं ने कहा, और तू, तेरा नाम क्या है ए चार टांगों वाले अक्लमंद? बहादुर ने गर्दन सीधी की। मैं हूं बहादुर, दुनिया मुझे गधा कहती है, मगर मैंने कभी इंसान को नींद में नहीं देखा जो बेशौर के डरता है। कुएं की गहराई में हंसी गूंजी। हाँ हाँ, लगता है अकल रेत पर भी उग सकती है। तो बता, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बहादुर ने कहा, मैं हर हुक्म मान लेता हूँ, चाहे वो बेवकूफ़ी का हो, और कभी कभार समझदार बनने की कोशिश करता हूँ तो सब हंसते हैं। एक लम्हे को खामोशी हुई, फिर कुएं से रोशनी निकली, नीली, सुनहरी, चमकती हुई। रेत के जर्रे जगमगा उठे। आवाज आई, ए गधे, तू हैवान नहीं, सबक है। तेरी सादगी ही तेरी ताकत है। जा, पानी तेरा भी हुआ। बहादुर ने अपनी जबान बाहर निकाली और प्याले से पानी पिया। वाह, ऐसा मजा तो मैंने खिचौड़ी खा के भी नहीं लिया। गफूर ने हंसते हुए कहा, ये पानी तेरा दिमाग भी रोशन कर देगा। बहादुर ने नाक चढ़ाई, फिर तो खतरनाक हो जाएगा। अब मंजर बदला। सुबह के वक्त वो जगह जैसे किसी ख्वाब में बदल गई थी। दरख्त की शाखों पर नीला परिंदा बैठा, हवा में खुशबू और जमीन नर्म। गफूर ने कहा, ये तो जन्नत लगती है। बहादुर बोला, अगर जन्नत में घास भी हो तो मैं रुकने को तैयार हूं। अभी वो दोनों लुत्फ ले ही रहे थे कि अचानक एक शोर हुआ। रेत हिली, जमीन कांपी और कुएं से एक सुनहरी मोहर निकली। एक पुरानी मट्टी की तख्ती, जिस पर लिखा था, जिसने अपनी प्यास का मतलब समझ लिया, उसके लिए हर कतरा समंदर बन गया। गफूर ने हैरत से देखा। ये क्या मतलब हुआ? पीछे से आवाज आई, मतलब ये कि सुकून पानी में नहीं, अपने अंदर की तशनगी मिटाने में है। वही लोमड़ी दरख्त के पीछे खड़ी थी। अरे तुम? गफूर ने कहा। लोमड़ी मुस्कुराई, मैं कहानियों का अंजाम देखने आई हूं। तुम दोनों इम्तिहान में कामयाब हुए। अब तुम्हें ये राज लेकर वापस जाना है ताकि दूसरों को सिखाओ, प्यास हमेशा दिल की होती है, जिस्म की नहीं। बहादुर ने तंजन कहा, तो अब हमें फलसफा सुनाने आई हो या खजूरें देने? लोमड़ी ने दम हिलाई, खजूरें नहीं, मगर नसीहत मुफ्त मिलेगी। गफूर ने तख्ती उठाई, शुक्रिया, अब हम वापस चलते हैं। लोमड़ी बोली, याद रखना, जो रास्ते को इज्जत देता है, रास्ता उसे मंजिल बनाता है। और यूं वो दोनों वापस रवाना हुए। रास्ता अब वैसा नहीं रहा था। हवा खुशगवार थी, रेत में खुशबू थी और सूरज भी नर्म। गफूर ने कहा, बहादुर, लगता है सफर बदल गया। बहादुर ने हंसते हुए कहा, नहीं, शायद हम बदल गए हैं। दोनों चलते गए, बातें करते गए। रावी कहता है कि उस दिन रेत ने भी उनके कदमों के निशान याद रखे, क्योंकि वो आम निशान नहीं थे, वो दो दोस्तों के थे जिन्होंने रेत में सच तलाश किया था। और जब रात हुई तो रेत की हवा में हल्की सी हंसी गूंजी। शायद वो कुनवा अब भी जिंदा था और किसी नए मुसाफिर को बुला रहा था। कहते हैं कि सफर जितना तवील होता है, इंसान उतना ही अपने आप से करीब आ जाता है, मगर गधा बस और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। अब सूरज सर पर आ चुका था। रेत इतनी गर्म थी कि नंगे पांव अगर बिच्छू भी चलते तो 2 कदम बाद सोचता कि ये कैसी सजा मिली है। मुसाफिर के माथे से पसीने की नदी बह रही थी और गधा अपनी चाल में एक खास शान से आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे वो कोई बादशाह हो जो अपनी रियाया के दरमियान गश्त कर रहा हो। ओए, जरा आहिस्ता चल, मुसाफिर ने कहा, मेरे पांव जल रहे हैं। गधे ने एक लंबा सा सांस लिया, फिर गर्दन मोड़कर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, मैं तो पहले ही आहिस्ता चल रहा हूं, अब चाहता है कि मैं पीछे हटकर चलूं। मुसाफिर ने एक छड़ी से हल्का सा इशारा किया तो गधे ने मन से ऐसी आवाज निकाली जो शायद दुआ थी या बद्दुआ। ओई ओई ओई। गधे ने एक इस्पात से छोटा सा कुनवा आया। दोनों ने रुक कर सस्ताने का इरादा किया। मुसाफिर ने पानी निकालने के लिए डोल फेंका, मगर रस्सी इतनी पोसीदा थी कि ऐन बीच में टूट गई और डोल कुनवे की गहराई में गुम। गधा करीब आकर मन से एक ही जैसी आवाज निकालने लगा, जैसे उसे मुसाफिर की बेबसी पर हंसी आ रही हो। हाँ, हंस ले, कल जब प्यास लगेगी ना तो समझ जाएगा कि कुनवा मजाक नहीं समझता, मुसाफिर बोला। कुछ देर बाद वो दोनों एक रेतीले टेले पर पहुंचे। मुसाफिर ने सोचा जरा साया हो तो बैठकर खाना खाऊं, मगर यहां तो सूरज के अलावा कुछ था ही नहीं। यार, तू ही कोई मशवरा दे, क्या करे? गधे ने फिर से अपनी गर्दन मोड़ी और इस बार चुपचाप उसके सामने बैठ गया। मुसाफिर हंसा, वाह, मतलब तू कहना चाहता है, चल बैठ जा, किस्मत के साए में आराम कर। फिर दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। सिर्फ हवा के शोर में एक अजीब सी दोस्ती महसूस हो रही थी।
वो दोस्ती जो लफ्जों से नहीं बल्कि थकन से बनती है। फिर रात पड़ी तो ठंडी हवा चलने लगी। आसमान पर सितारे यूं चमक रहे थे जैसे किसी ने नीले पर्दे पर नमक छिड़क दिया हो। मुसाफिर ने रेत पर चादर बिछाई और लेट गया। गधा पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, सो क्यों नहीं रहा? मुसाफिर ने कहा। गधा खामोश। अच्छा, डर लग रहा है? फिक्र ना कर, मैं हूं ना। मुसाफिर ने प्यार से इसके गले पर हाथ रखा। गधे ने लंबा सांस लिया और आसमान की तरफ देखा। दोनों के दरमियान एक अजीब सा सुकूत था, जैसे दो रूहें अपने अपने दुख बयान किए बगैर एक दूसरे को समझ चुकी हों। सुबह हुई तो मुसाफिर ने गधे से कहा, आज हम शहर के करीब पहुंच जाएंगे। गधे ने कुछ कदम चले, फिर अचानक रुक गया। सामने एक चमकदार पत्थर पड़ा था। मुसाफिर ने कहा, ये तो आम पत्थर है, छोड़ दे। मगर गधे ने मुना से पत्थर उठा लिया और चल दिया। जब वो शहर पहुंचे तो एक सन्नार ने मुसाफिर को कहा, अरे ये तो सोना है। मुसाफिर हैरान हुआ। गद्दा उसे यूं देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैं गद्दा जरूर हूं मगर अंधा नहीं। मुसाफिर ने सोना बेचा, पैसे लिए और सोचा कि अब गद्दे को खिला पिला दूं। मगर गद्दा तो बाजार के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और किसी नायाब शायर की तरह फजा में मुना उठाकर ढेंचू ढेंचू करने लगा। लोग जमा हो गए, बच्चे तालियां बजाने लगे। कोई कहता, ये तो नचता भी है। और वाकई गद्दे ने 2 कदम दाएं 2 बाएं चलकर एक ऐसा डांस क्या कि मुसाफिर की हंसी छूट गई। शाम को जब दोनों दोबारा रास्ते पर निकले तो मुसाफिर ने कहा, यार लगता है तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। गद्दे ने मुना से ऐसी आवाज निकाली जैसे कह रहा हो, आखिर तो मान ही गया। उसी रात जब वो एक छोटे नखलस्तान के करीब पहुंचे तो चांदनी में रेत चमक रही थी। मुसाफिर ने कहा, जिंदगी भी ना बिल्कुल तेरे जैसी है, कभी खामोश, कभी जिद्दी, कभी अनमोल। गधा बैठ गया और इसके पहलू में बैठकर मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा। हल्की हवा चल रही थी और एक एहसास दिल में उतर रहा था कि शायद असल मंजिल वो नहीं जहां पहुंचना है, बल्कि वो सफर है जो हंसी, थकन और सादा लम्हों से भरा हो। कभी कभी जिंदगी के गधे ही हमें सबसे बड़े सबक सिखाते हैं, खामोशी, बर्दाश्त और वो सादा हंसी जो किसी सफर को कीमती बना देती है। कहते हैं सफर जब लंबा हो जाए तो इंसान या तो खामोश हो जाता है या फिर खुद से बातें करने लगता है। मुसाफिर भी अब वही कर रहा था, खुद से, गधे से, हवा से, रेत से। दूसरी तरफ गधा खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में एक खास तंज था, जैसे कह रहा हो, इंसान जितना थकता है उतना ही बोलने लगता है। हम गधे बस चलते रहते हैं। अब उनका सफर एक पुराने वीरान इलाके में दाखिल हो चुका था। रेत के दरमियान कभी कभी टूटे बर्तन, अध जले दरख्त और पुराने खेमों के निशानात मिल जाते। मुसाफिर ने कहा, ये जगह अजीब सी लग रही है, लगता है कभी यहाँ लोग बसते थे। गधा रुका, नाक से एक लंबी सांस खींची जैसे वो माजी की खुशबू सूंघ रहा हो। थोड़ी ही देर में सामने एक पुराना कमवा दिखाई दिया। मुसाफिर खुश हुआ, चलो अब शायद पानी मिल जाए। मगर जब उसने कमवे में झांका तो नीचे अंधेरा था और अंधेरे में जैसे कोई हरकत कर रहा हो। मुसाफिर ने नजरें तेज की तो देखा कि नीचे सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक पुराना चराग पड़ा है। ओह, ये तो जादुई चराग लगता है। गधे ने हैरत से ये की। मुसाफिर ने डोल फेंका, चराग निकाला, रेत झाड़ी और हल्का सा रगड़ा। अचानक धुएं का बादल उठा और उसमें से एक जिन नमूदार हुआ। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? मुसाफिर कपकपाया, मैं मुसाफिर हूं और ये मेरा साथी गधा। जिन ने गधे को देखा और हंसते हुए बोला, वाह, तुमने गधे को साथी कहा, मालिक नहीं? मुसाफिर बोला, मालिक तो वो है जो रास्ता दिखाए, मैं तो बस चलने वाला हूं। जिन को ये जवाब पसंद आया, बोला, चलो तुम्हें एक ख्वाहिश देता हूं, सोच समझ कर मांगना। मुसाफिर ने सोचा, पैसा, शोहरत, खाना? फिर उसने गधे की तरफ देखा जो अभी रेत चाटने में मसरूफ था। मैं चाहता हूं कि ये बोलने लगे ताकि मेरी तन्हाई दूर हो जाए। जिन ने कहा, जैसा तुम चाहो, और धुआं एक बार फिर फैला। अगले लम्हे गधा बोल उठा, आखिरकार तुम्हें इतना वक्त लगा ये मांगने में? मुसाफिर उछल पड़ा, ओए, तो बोल रहा है? हाँ, और तुम्हारी बातें भी सुनकर थक गया हूं। मुसाफिर हंस पड़ा, चलो अब तो बातें मजे की होंगी। दोनों ने सफर दोबारा शुरू किया।
मगर अब कहानी का मजा दुगना हो चुका था। गधा हर बात में तंज करता। सूरज निकल आया? हाँ, जैसे कल नहीं निकला था। पानी कम है? हाँ, क्योंकि तुमने कल भी आधा पी लिया था। मुसाफिर हंसते हंसते कहता, यार तू तो इंसानों से भी ज्यादा बातूनी निकला। रात को वो एक पुराने बोसीदा मजार के करीब जा पहुंचे। हवा थोड़ी सर्द थी। मुसाफिर ने चादर ओढ़ी। गधा बोला, ये जगह अजीब सी लग रही है। डर गया क्या? नहीं, बस सोच रहा हूं कि अगर जिन वापस आ गया तो क्या कहूंगा। कह देना हम सिर्फ गुजर रहे हैं। उसी लम्हे मजार के अंदर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दोनों रुक गए। फिर एक मध्यम सी आवाज आई, सफर में जो खुद को ढूंढ ले वो मंजिल पा लेता है। गधा बोला, ये किसकी आवाज थी? गधा बोला, शायद वो जिन नहीं, ये जगह खुद बोल रही है। इस रात दोनों ने वहीं पड़ाव डाला। गधा आसमान की तरफ देखता रहा जैसे वो सोचों में डूबा हो। मुसाफिर ने कहा, क्या सोच रहा है? गधे ने कहा, यही कि इंसान अक्सर सफर में अपने मकसद से भटक जाता है क्योंकि वो हर वक्त मंजिल की फिक्र में रहता है। मुसाफिर खामोश हो गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, फिर शायद तू ही मेरा उस्ताद है। गधा हंसा, अगर तू शागिर्द है तो मैं भी गधा उस्ताद हुआ। दोनों हंसने लगे। हवा नर्म हो गई, चांदी फैल गई और रेत के जर्रे किसी खामोश दुआ की तरह चमकने लगे। जिंदगी के सफर में बाज औकात वही मखलूक हमें सबक देती है जिसे हम सबसे कम अकल समझते हैं। बोलने वाला गधा शायद मजाक लगे, मगर हकीकत में वो हमारी ज़मीर की आवाज़ होता है जो सिर्फ तब सुनती है जब हम खामोश हो जाएं। कहते हैं कि सहराओं में कभी कभी खामोशी भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। मुसाफिर और उसका गधा कई दिनों से चलते जा रहे थे, जिनकी मुलाकात, बोलने वाले गधे की शरारतें और मजार की आवाज़, ये सब अब एक धुंधले ख्वाब की तरह पीछे रह गए थे। अब इनके सामने एक बेइंतहा वसी सहराई मैदान फैला था। रेत इतनी नरम थी कि कदम रखने से वो कुदाज हो जाती और हवा ऐसी थी जैसे वक्त रुक सा गया हो। गधा थोड़ा सा रुका, बोला, ये जगह कुछ अजीब सी है, जैसे सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो सफर की खूबसूरती है। फिर दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जैसे कहीं पानी बह रहा हो। मुसाफिर खुश हुआ, देख नखलिस्तान है। गधा शक में पड़ गया, कहीं ये शराब तो नहीं? नहीं नहीं, देख तो सही। वो दौड़ने लगे। रेत उड़ने लगी, सांसें भागने लगी, उम्मीदें चमकने लगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो कुछ नहीं था, न पानी न दरख्त, सिर्फ गर्म रेत और खालीपन। मुसाफिर रुक गया, पसीना बह रहा था और लबों पर एक कमजोर हंसी थी। तो ये शराब था। गधा धीरे से बोला, इंसान भी तो अक्सर अपने ख्वाबों के पीछे भागता है जो कभी कभी बस शराब ही निकलते हैं। मुसाफिर ने नजरें नीची कर लीं, फिर आहिस्ता बोला, शायद तू ठीक कह रहा है। हम अक्सर वो चाहते हैं जो हमें धोखा देता है और जो सच होता है उसकी कदर नहीं करते। इस लम्हे हुआ थम गई, रेत जैसे सुन रही हो। फिर अचानक दूर कहीं से घंटियों की हल्की आवाज आई। दोनों ने देखा, रेत के पार एक काफला जा रहा था, ऊंटों के साथ लोग, चमकते कपड़े और एक बुजुर्ग सवार। मुसाफिर ने हाथ हिलाया, अरे रुक जाओ भाई। काफला रुका। बुजुर्ग ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? मुसाफिर ने कहा, मंजिल की तलाश में। बुजुर्ग मुस्कुराए, मंजिल? बेटे, मंजिल कभी सामने नहीं होती, वो हमेशा दिल के अंदर छुपी होती है। बस आंखें बंद करो और खुद को देखो, रास्ता वहीं से निकलेगा। मुसाफिर हैरान रह गया। उसने आंखें बंद की, खामोशी छा गई। फिर अचानक उसे लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। रेत नहीं हिल रही, हवा नहीं बह रही, वक्त थम गया। फिर एक आवाज आई, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? मुसाफिर ने कहा, मैं वो हूं जो खुद को ढूंढने निकला है। आवाज बोली, फिर रुक क्यों गया? क्योंकि रास्ता खत्म हो गया है। नहीं, रास्ता कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ नजर खत्म हो जाती है। जब उसने आंखें खोली तो काफिला गायब था। बस गधा सामने खड़ा था, चुपचाप, मगर उसकी आंखों में भी चमक थी। मुसाफिर ने कहा, क्या तूने भी सुना? गधा बोला, हाँ, शायद वो किसी और जहान से आए थे। दोनों थक कर बैठ गए। मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब बादलों के पीछे छुप रहा था। रेत पर साये रेंग रहे थे। मुसाफिर बोला, कभी सोचा है गधे, जिंदगी भी कितनी अजीब है। हम सब कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और जब मंजिल मिलती है तो समझ आता है वो तो अंदर ही थी। गधा बोला, हाँ, मगर इंसान हमेशा बाहर ढूंढता है क्योंकि अंदर देखने के लिए हौसला चाहिए और वो सबके पास नहीं होता। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, तो तू तो बड़ा दाना निकला। गधा बोला,
बस सुनने वाला चाहिए, वरना हम गधों में भी हिकमत बहुत है। हवा में एक अजीब सी नरमी आ गई। दोनों ने दोबारा चलना शुरू किया, मगर अब सफर में खामोशी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, जैसे दिल ने खुद को समझा लिया हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सराप गलत मंजिल है। असल मंजिल वो नहीं जो नजर आए, बल्कि वो है जो अंदर से सुकून दे। और जब तुम खुद को पहचान लो तो समझ लो कि तुमने सफर जीत लिया, चाहे रास्ता खत्म ना भी हो। कहते हैं कि हर सफर का अंजाम होता है, मगर कुछ सफर ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, बस शक्ल बदल लेते हैं। मुसाफिर और उसका गधा अब सहराए चमक में दाखिल हो चुके थे। ये वो जगह थी जहां सूरज थक कर ढलता था और रेत पर चांदनी ऐसे पड़ती जैसे किसी ने ख्वाब बिछा दिए हों। सफर तवील हो चुका था, जिस्म थक गए थे, मगर दिल में एक नरमी सी आ चुकी थी, जैसे किसी ने अंदर बैठकर सब शोर सुला दिया हो। गधा अब कम बोलता था, और जब बोलता तो सीधा दिल में जा लगता। मुसाफिर भी अब कम सवाल करता था, क्योंकि कुछ जवाब खामोशी ही दे देती है। एक शाम वो दोनों एक पथरीले तपते मैदान में जा निकले। दूर से एक छोटा सा पुराना सराय नुमा मकान दिखाई दिया। दरवाजे पर लकड़ी का तख्ता लटक रहा था, जिस पर लिखा था, यहाँ मुसाफिर ठहरते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मुसाफिर मुस्कुरा दिया। अजीब बात है, यहाँ रुकने का कह रहे हैं, मगर मंजिल से इनकार कर रहे हैं। गधा बोला, शायद यही मंजिल है, जहाँ रुकने की इजाजत है, मगर फख्र की नहीं। दोनों अंदर गए। एक बूढ़ा शख्स वहां बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में रोशनी और हाथ में एक खाली प्याला। मुसाफिर ने अदब से कहा, सलाम बाबा जी, क्या कुछ मिल सकता है? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मिल तो सब कुछ सकता है, बस शर्त यह है कि तुम पहले ये बताओ, तुम तलाश में क्यों निकले हो? मुसाफिर चौंका। मैं खुद को ढूंढने निकला था। और मिला? शायद कुछ कुछ, बूढ़े ने कहा। तो फिर मुबारक हो, तुम वापस जाने के काबिल हो गए हो। मुसाफिर हैरान, वापस कहाँ? जहां से चले थे, मगर इस बार आंखें खुली होंगी। यह सुनकर गधा धीरे से हंसा। मैं तो कहता था ना, इंसान हमेशा घूम फिरकर वहीं आता है जहां से भागा होता है। बूढ़ा मुस्कराकर बोला, गधा समझदार है, उसे सदियों की खामोशी ने दाना बना दिया है। मुसाफिर ने झुककर कहा, बाबा जी, क्या आप हमें बताएंगे कि ये सराय क्या है? बूढ़ा बोला, ये वो जगह है जहां सब थके हुए मुसाफिर आकर समझते हैं कि मंजिल कोई पता नहीं, बल्कि एक कैफियत है। जब दिल मुतमईन हो जाए, वही मंजिल है। मुसाफिर के लबों पर सुकून आ गया। उसने गधे के कान पर हाथ रखा। शायद तू मेरा बेहतरीन हमसफर था। शिकायतें बहुत की, मगर सबक भी बहुत दिए। गधा बोला, बस अब अगला सफर तब करना जब दिल फिर शोर मचाए। रात हुई, आसमान पर चांद फैल गया। रेत पर दोनों के साए लंबे हो गए, जैसे वक्त रुक गया हो। बूढ़ा अंदर गया और वापस ना आया। जब सुबह हुई तो सराय भी गायब था। बस एक तख्ती रेत में गिरी थी। जो खुद को पाले वो कहीं नहीं रहता, वो सब में बसता है। मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा। गधा धीरे से बोला, तो क्या अब हम मंजिल पर पहुंच गए? मुसाफिर ने कहा, शायद नहीं, मगर अब मंजिल की जरूरत भी नहीं। दोनों ने खामोशी से सफर दोबारा शुरू किया, हल्की हवा के साथ, रेत के नर्म कदमों में। कहते हैं आज भी जब हवा सहराओं में बहती है तो कहीं दूर ठप ठप की आवाज आती है। शायद वही गधा और मुसाफिर है जो अब भी हंसते, सीखते और चलते जा रहे हैं। बेटा, जिंदगी का सबसे लंबा सफर वो नहीं जो सहराओं में होता है, बल्कि वो जो इंसान अपने अंदर तय करता है। कभी कभी गधा भी उस्ताद बन जाता है, अगर इंसान सुनने का हुनर सीख ले। और याद रखो, मंजिल हमेशा रास्ते में छुपी होती है, बस दिल देखने वाला होना चाहिए।